Thank you being here today. I am Neelam Dhalwal. I am today to explain about implementation of 5S in an educational institute. So I am explained to you about implementation of 5S in educational institute, what it is and why it is. So start my presentation. There are contents. Seeing the topic, this question comes to our mind that this is what. As we know, 5S is a workplace organization method that uses a list of 5 Japanese words: Siri, Seto, Siso, Siketsu and Shisuke. This presentation focuses on the implementation of 5S in educational institute. Implementation of 5S will improve the workplace, give better environment and elimination of accident in workplace. This presentation will help to know and identify the waste and also would provide the method for removing and controlling the waste in an institute. As we know, the concept of the 5S was initiated in Japan. Scope of the study is to have a better well organized educational institute by implementing 5S. The housekeeping index has been calculated and the 5S technique is implemented and the files and records are maintained properly in the particular order. Objective of the study: there are two objectives, primary and secondary. Primary objective is to study the institute and implement 5S to improve the performance and also for bringing a well organized environment in an institute. Secondary objective is to identify the waste, to identify the area that we are needed to be improved, to standardize the operating procedure. What is 5S? 5S is a set of techniques provide a standard approach to housekeeping within Lean. 5S is a set of practice that need to be practiced every day until it become a habit for every individual in the institute. 5S was implemented in educational institute focusing on the better management of student, teaching and non-teaching members, as well as this system helped to organize the workplace and due to which there was decreased wastage, optimized quality as well as productivity. 5S policy: in the 5S, Siri, sort यानी clearly distinguish needed item from unneeded and eliminate. Set in order: keep needed item in the correct place to allow for easy and immediate retrieval. Shine: keep the workplace neat and clean. Standardize: the method by which sort, set in order, shine are made habitual. Sustain: maintains established procedure. Safety: strive to eliminate the accident in workplace. अब हम समझते हैं इनके बारे में एक एक करके कि ये एक्चुअल में है क्या. First of all, benefits of 5S: reduce the wastage level such as time, producing defect, excessive inventory, effective and better utilization of resources, clean working environment, health and safety, machine maintenance easy, uniform terminology, accident and mistake reduce, increase space, quick retrieval, step by step implementation. सीरी यानी सॉर्ट. सीरी क्या होता है, इसमें हम नीडेड आइटम्स और अननीडेड और अनवांटेड आइटम्स को अलग अलग करते हैं. जो अनवांटेड आइटम होते हैं हम उसको डिस्पोज कर देते हैं और उन्हें एक अलग जोन में डाल देते हैं. जिसे हम अभी कोरोना के ज़माने में हम जैसे बोल रहे हैं कि हम सब क्वारंटीन है, वैसे ही हम उसे भी क्वारंटीन कर देते हैं. फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो आइटम्स मंथली वीकली यूज़ नहीं आ रहे हैं उन पर रेड टैग लगा देते हैं. Another element of the standard approach is red tagging, where items are given a tag which says what the item is, which location it is and when it was identified in the location. स्टेप क्या होते हैं सॉर्टिंग के? सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे वर्क प्लेस में क्या क्या है. अगर वो नीडेड है तो कब नीडेड है और कितना नीडेड है ये देखेंगे. अगर अनवांटेड है तो उस पर रेड टैग लगा देंगे. रिमूविंग अनवांटेड आइटम्स. सेकेंड है सेट इन ऑर्डर. Everything in its place and one place for everything become the way of thinking for every member when the second stage of 5S implemented. The main aim for this stage is that it helps the people to know the correct place to find the thing for which is searching around. इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे जो भी यूजेस हैं, जो भी नीडेड थिंग्स है उनको हम करेक्ट प्लेस पे रखेंगे ताकि हमें जब भी ज़रूरत है हमें वो इजीली अवेलेबल हो जाए और टाइम भी कंज्यूम हो. हियर द शॉर्ट लिस्ट नीडेड आइटम शुड बी प्लेस इन अप्रोप्रिएट प्लेस. लेबलिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल ईजीली. स्टेप्स ऑफ सेट इन ऑर्डर: शॉर्ट लिस्ट करेंगे वही नीडेड थिंग्स की. नीडेड थिंग को डिवाइड करेंगे हम, डेली कौन सा यूज़ आ रहा है, वीकली कौन सा आ रहा है, मंथली कैसे यूज़ आ रहा है. फिर हम उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, ओवरऑल लेआउट बनाएंगे, स्विच बोर्ड लेआउट बनाएंगे फॉर आइडेंटिफिकेशन. ऑलवेज कीप द थिंग इन दैट अलोकेट प्लेस. सेट इन ऑर्डर. थर्ड वन इज़ शाइन. वी नो दैट क्लीननेस इज़ नेक्स्ट टू गॉड. हम जिस भी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं अगर वो क्लीन और नीट होगा तो हमें भी काम करने में मज़ा आएगा. इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा उसकी कि रेगुलर क्लीनिंग का. रेगुलर क्लीनिंग इज़ अ प्रॉपर वे हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट द वेस्ट. Importance: cleaning should become a daily habit like bathing. Turn workplace into clean, bright place where we'll enjoy
working. Steps of shine: first of all, find the dirt source and identify causes for the same. Then make schedule for cleaning the workplace. According to the schedule, make the cleaning checklist. Shine. नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्डाइज. स्टैंडर्डाइज में ये होता है कि सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर और शाइन तीनों प्रोसेस हैबिचुअल और रेगुलर और डेली हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस बात को हम चेक करेंगे. स्टैंडर्डाइजिंग रेफर्स टू स्टैंडर्डाइज वर्क प्रैक्टिस. स्टैंडर्डाइजेशन इज द कंडीशन दैट एग्जिस्ट व्हेन द फर्स्ट थ्री पिलर्स सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर एंड शाइन आर प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड. सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन स्टेप मस्ट बी मेड हैबिचुअल. स्टेप्स क्या हैं इसके? स्टैंडर्डाइज एवरी प्रोसेस इन द इंस्टीट्यूट, गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरीवन. सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर मिलती है, इसमें स्टूडेंट हो, टीचर हो या नॉन टीचर हो. सस्टेन क्या होता है? द फाइनल स्टेज इज दैट ऑफ बीइंग डिसिप्लिन. सस्टेन में ये होगा कि जितने भी हमने प्रोसेस करे हैं उसकी एक तो हमें ट्रेनिंग देगा और हमारे रेगुलर चेकिंग होगी कि वो वाले प्रोसेस सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे. द रेगुलर इंस्पेक्शन कैन बी डन यूजिंग चेक शीट ऑन द बेसिस ऑफ विच रडार ग्राफ और परसेंट कैन बी ड्रॉन. वंस अ मंथ मस्ट मेक अ 5S इंस्पेक्शन ऑफ वर्क प्लेस एंड एवरीवन शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ 5S कंसेप्ट. हमें 5S के पहले उसको सबको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी 5S है क्या. उसके बाद हम इसे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे. हमारे जूनियर्स को हम ये ट्रेनिंग दे सकते हैं और टीचर भी हमारी इसमें हेल्प कर सकते हैं कि बच्चों को प्रोजेक्ट दे या फिर सेमिनार की हेल्प से 5S इम्प्लीमेंट करें. स्टेप्स ऑफ सस्टेन: फॉलो एंड मेंटेन द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स. मंथली मस्ट मेक ऑडिटिंग इन द वर्क प्लेस. सस्टेन. नाउ प्रेजेंट कंडीशन ऑफ कॉलेज. मैं अपने कॉलेज गवर्नमेंट वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर को 5S इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, तो उसके क्या क्या स्टेप है. द इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज हैज़ 3 फ्लोर्स, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर. हम ये चाहते हैं कि हमारा कॉलेज भी 5S इम्प्लीमेंट हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स हो. Each floor has a classroom, toilet, drinking water filter and labs, etc. In the ground floor. The ground floor is the one which is the most important part of the college. It is the one which gives the first impression about the college to everyone whoever comes there. अब इस फ्लोर पे क्या क्या है? रिसेप्शन है, प्रॉक्टर, अकाउंट सेक्शन, एग्जामिनेशन सेक्शन, ऑडिटोरियम एंड फैकल्टी ऑफिस, क्लासरूम, टॉयलेट एंड ड्रिंकिंग वाटर फिल्टर. जो आउटडोर एरिया है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम अंदर HOD रूम्स या हेड रूम्स, स्टाफ रूम्स या प्रॉक्टर देखें तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे पेपर बिखरे हुए रहते हैं और जो चेयर्स है वो भी इधर उधर रहती है, कोई भी सही जगह पे नहीं रहती है. तो हमें इस पे इम्प्लीमेंटेड करने की ज़रूरत है. फिर हम क्लासरूम में देखते हैं तो अननेसेसरी टेबल क्लासरूम में पड़ी रहती है. वाटर फिल्टर की भी रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए, जो होती नहीं है. इन द फर्स्ट फ्लोर अदर साइड लाइब्रेरी है और इन द फर्स्ट फ्लोर फैकल्टी ऑफिस, प्लेसमेंट सेल, सेमिनार हॉल, डायरेक्टर ऑफिस, डीन्स ऑफिस, एट्सेट्रा. द फ्लोर इज मेंटेन फ्रॉम आउटसाइड इज अ गुड वे. द कंडीशन इन द टॉयलेट नीड टू बी इम्प्रूव्ड इन अ बिग वे ऑफ कीपिंग इट क्लीन एंड ऑल्सो इन कीपिंग द क्लीनिंग थिंग्स इन इट particular place. The condition of the seminar hall is quite well but still needs a lot of improvement. Even the library and also the staff room. Sometimes the book is not in its right place and we have a lot of difficulty in finding it. In the second floor, toilet condition are as well as in the computer lab. Some computer doesn't work and the classroom duster and chalk or markers don't have any kind of specific place for keeping them. And even when the speaker are brought, they don't have a specific place to keep. The condition of the classroom and the way the benches and chairs kept in the classrooms are really very bad. The condition of the toilet is same in all the floor. The thing used for cleaning are not kept in a proper way. अब हम 5S को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें 5S को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे. हर मेंबर को हम 5S की ट्रेनिंग करेंगे. हम कॉलेज को कन्वीनियंट जोन में डिवाइड करेंगे, फिर हम उस कन्वीनियंट जोन को सब जोन में डिवाइड करेंगे, फिर हम 5S अप्लाई करेंगे 1 by 1 और एक ऑडिट टीम भी बनाएंगे जो इसको टाइम टू टाइम चेक करे. देन हमारी जो कन्वीनियंट जोन है वो 3 जोन बनेगी हमारी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर. फिर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर को भी हम सब जोन में डिवाइड करेंगे. जैसे ग्राउंड फ्लोर में आ गया प्रॉक्टर, अकाउंट सेक्शन, एस्ट्रक्टा. फर्स्ट फ्लोर में आ गया सेमिनार हॉल, डीन्स ऑफिस, प्लेसमेंट सेल. सेकंड फ्लोर पे आ गए टॉयलेट, क्लासरूम एंड अदर प्लेसेस. नेक्स्ट टू इट इज़ इम्प्लीमेंटिंग ऑल द फेस ऑफ 5S 1 by 1. फर्स्ट सीरी में हम पूरे कॉलेज में देखेंगे कौन कौन से आइटम्स नीडेड और कौन कौन से अनवांटेड, उनको हम एलिमिनेट करेंगे. दिस वुड रिड्यूस द स्पेस यूटिलाइजेशन इन द कॉलेज एंड ऑल्सो विल क्रिएट मोर क्लीन एंड नीट इन्वायरमेंट. देन हम स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस करेंगे. सबसे पहले हम वही नीडेड और अनवांटेड को अलग अलग करेंगे. जो अनवांटेड है उसको डिस्पोज करेंगे. फिर फोटोग्राफ लेंगे, फोटोग्राफर्स रखेंगे हम उसके लिए. अपने स्टूडेंट्स को ही पहले भी फ़ोटोग्राफ लेंगे, क्लीनिंग के पहले भी और बाद में भी लेंगे. और रेड टैग एरिया
बना लेंगे। फाइंडिंग एन एरिया टू कीप ऑल द रेड टैग्ड आइटम्स, someone should be kept to have check on the store in regular level, take after photographs to compare with the earlier situation. Set in order में हम keeping the necessary item in correct place so that they can be easily assessed. इसमें भी हम वही करेंगे, unnecessary thing को एलिमिनेट कर देंगे। पहले हम फोटोग्राफ लेंगे, बाद में लेंगे ताकि कंडीशन चेक कर सकें, और सारे नीडेड आइटम्स को पर्टिकुलर प्लेस पे जमा देंगे। हम इसमें कलर कोडिंग भी दे सकते हैं ताकि हमें ईजिली चूज़ कर सकें हम जो भी हमें आइटम्स नीडेड है। थर्ड वन इज़ शाइन में एवरीथिंग क्लीन और क्लीन होनी चाहिए। और कॉलेज इन डेली बेसिस एंड यूजिंग दिस टू इंस्पेक्ट द डिफेक्ट इन इक्विपमेंट, अगर क्लीनिंग होगी तो हम कौन से हमारे इक्विपमेंट ख़राब है हम ईजिली देख पाएंगे, और अगर कुछ ख़राब भी हुआ होगा तो हम उसे ईजिली इंस्पेक्ट भी कर लेंगे, और हमें अगर क्लीन इन्वायरमेंट होगा तो हमें काम करने में मज़ा आएगा। फोर्थ वन इज़ Standardize is concerned with creating visual control and guidelines for keeping the college in a good organized way. This phase is mainly implemented to see that the above 3 R's are implemented in a proper way and in daily basis. स्टेप वही रहेंगे, डिसाइड करेंगे हम कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, फिर वो मेंबर को कैसे रेगुलरली फोर्स करेगा कि ये वाला काम करो। चेक हाउ द 3 R's आर वेल मेंटेन्ड। फोर्थ वन इज सस्टेन, giving training to develop the discipline among all the member of the institute that everyone follow the 5S standard and it become as a part of their life. Implementing sustain need to create awareness, time structure and support. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5S इन डिफरेंट सब जोन, क्लासरूम में हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारी चेयर और बेंचेस रहती है उसको नट बोल्ट से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि वो इधर उधर नहीं जाए, और हम एक येलो जोन में एक लाइन भी बना सकते हैं ताकि वो इस लाइन में है तो उसी लाइन में रहे, उससे इधर उधर ना हो। कॉलेज शुड लुक टुवर्ड फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ टेबल्स। Every classroom must have a special place for keeping the chalk, duster, marker and files. All this can be differentiate. Each classroom must have a dustbin. Toilets, there are 3 to 4 toilets. There is a tap but there is no water system in it. The cleaning item required to clean the toilet must be kept within the label place and shouldn't be kept. Floors, the floor or the pathway that connect the classroom, office and also the stair which connect the different floors are very important part. So regular cleaning of this space and the waste item on the floor must be properly disposed. थर्ड वन इज़ लाइब्रेरी हैज़ 350 to 400 रैक्स एंड 10,000 बुक। पर हम जब भी बुक ढूंढते हैं हमें इजीली अवेलेबल नहीं होती है, तो इसमें क्या इम्प्लीमेंट हुआ कि सारी बुक जिस सब्जेक्ट की है उसका अलग से रैक बने ताकि हमें इजीली मिल जाए। जो पुराने न्यूज़पेपर है उसको डिस्पोज कर दे और मैगजीन और न्यूज़पेपर के लिए अलग से रैक बनाए। ड्रिंकिंग वाटर प्लेस, there has been regular cleaning of the place and glasses to keep it hygienic. Regular checkup of the water must be done. In the seminar hall, the projector, speaker, mic, CPU, keyboard, mouse all need to be kept in their respective place with making them correctly. Seminar hall must be clean at regular interval to keep it neat and clean. In the checklist हम देखेंगे, चेकलिस्ट में हम ये डिसाइड करेंगे हमें क्या क्या इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है और वो रेगुलर बेसिस पे कैसे कैसे हो रही है। और हम जो इंस्पेक्शन के लिए हम जिसे भी चूज़ करेंगे वो रेगुलर इंस्पेक्शन करेगा कि क्या क्या चीज़ किस किस बेसिस पे हो रही है। जैसे फाइल्स ऑफ रिकॉर्ड्स, नो एडिशनल फाइल्स आर देयर, मतलब डिस्क्रिप्शन देंगे कि यहाँ पे अगर फाइल्स ऑफ रिकॉर्ड्स पड़ी थी तो बाद में उसका हम क्या डिस्क्रिप्शन देंगे कि वो सही जगह पे है या नहीं है, उसे कैसे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। क्वालिटी, प्रोसीजर, रेगुलर चेक, डिफरेंट प्लेस फाइल्स, लाइटनिंग, अवॉइडेंस ऑफ डर्ट, द फर्स्ट 3 R's, यूनिफॉर्म रूल्स, इंटरेक्शन ऑफ पीपल एक्सेट्रा। कंक्लूजन यही है कि 5S implemented in the college will improve the effectiveness and also give a create image in the eyes of the parents, upcoming student and also recruiters and other bodies. 5S provide a method to rearrange the layout and improve the discipline. सो हम यही चाहेंगे कि हमारा कॉलेज भी 5S इम्प्लीमेंटेड हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो हमारे कॉलेज की तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां आए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का प्लेसमेंट हो और जो एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो ताकि हमारे कॉलेज की इमेज बढ़े। दिस हेल्प टू मेक एवरी वर्क इन स्मार्ट वे, मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट एंड मिस्टेक रिड्यूस। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5S हेल्प टू मेक द वर्क ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ईजियर। एनी क्वेरीज? थैंक यू।